only very important topics which are very important from the management perspective. That only I'm teaching to you all, right? Since we all know now examination is not a matter of concern, but we should learn something new. So today I'll be discussing about quality management. Now, quality management kya hai? What is quality management? As the name itself suggests, that definitely quality management means it is something related to quality process, quality improvement. This is what we are talking about. Quality का मतलब क्या होगा? Quality means something related to quality of the product or services. Normally, we all know that an organization either produce a product or a services, right? We as an organization will definitely produce either a product or we will produce a services, right? Now, in the process, in the entire production process, as I discussed about the operations management, what did we discuss in that? We understood the flow or process concept, right? Now, process, in whatever process we are, either we are doing a manufacturing, right? It's a production process or a trading, or we are providing some sort of services. Ultimately, it will reach to our consumer, right? In the meantime, in the entire process from the production till it reaches to the ultimate consumer, what is our main object? Our main concern is that during this entire, in between this process, we should follow the entire steps very well. That means our main concern is that every resources should be effectively and efficiently utilized. So that is what the basics of economics. Again, it is coming in every section. So we understand how economics is so very important for us, right? So again, in this, as a producer, what is our concern? From the production till it reaches to the consumer, there are many chains. We have discussed, or I may have discussed about supply chain. So in this, between the producer to the consumer, there are various chains. So entire chain needs to be managed well. That means every activity should be, in every activities, the resources, because ultimately it is all about resource management. Resources should be effectively and efficiently utilized. So what does it actually, what does it mean? अगर हम बात करते हैं effectively and efficiently utilization की मतलब क्या हुआ? That is minimization of wastage. वेस्ट जो उसको मिनिमाइज करना है, बोल सकते हैं. दिस कुड बी वन लैंग्वेज दैट वी कैन यूज. अनदर इज नो एरर कॉन्सेप्ट. नो एरर, नो कंप्लेंट्स, right? This could be the normal criteria through which we can say yes, our product is a quality product or we are following a quality process. तो हम अगर बोलते हैं क्वालिटी की बात, तो क्वालिटी मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, तो वो उस गोल को फुलफिल करना विथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेजेस, या मैं उसको बोल सकती हूँ नो एरर नो कंप्लेंट. दैट मीन्स माई कस्टमर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड, राइट? देखिए, देयर आर फ्यू टर्म्स दैट वी विल यूज. ओके, बिफोर आई एम गोइंग अहेड, आप लोग का कोई प्रॉब्लम है? अभी तक कुछ समझने में कोई दिक्कत हुई है? मैं आगे बढ़ूं? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग अनम्यूट करके मुझे बोलिए. और एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा. ओके, मैं बता रही थी, एज आई स्टार्टेड विद इट, मैंने अभी क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ना. क्वालिटी इज अ वेरी बज़वर्ड, मतलब हर जगह पर आप ये क्वालिटी ना बहुत फैंसी जैसा लगता है, हर कोई क्वालिटी के बारे में बात करते हैं. बट द बेसिक्स इज, बेसिक कहाँ से शुरू हुआ? ये क्वालिटी मैनेजमेंट का बेसिक कहाँ से है? आप लोगों को मैंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बेसिक्स बताए ना, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है उसका ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फंक्शनिंग लेवल. देखो, एकदम बेसिक लेवल से आपका ये क्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा.
मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑपरेशंस लेवल, जहाँ पे हमारा ऑपरेशंस हो रहा है. ऑपरेशंस इज कंसर्न विथ व्हाट, रॉ मटेरियल्स आ रहा है मेरे पास किस तरह का रॉ मटेरियल आ रहा है. तो चेकिंग मैं यहीं से शुरू कर दूंगी कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है मैं उसकी चेकिंग करती हूँ सबसे पहले. तो ये काम किसका है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट का. तो आप देख सकते हो ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो काम है ना, इट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल एट ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ऑपरेशंस में सबसे पहले इसका काम होता है, देन इट गो अहेड. मतलब हर लेवल पे, हर प्रोसेस में क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. हर एक चीज में क्वालिटी पे हम फोकस करेंगे. क्वालिटी मीन्स व्हाट, एज पर स्टैंडर्ड, एज पर बेंचमार्क, एज पर टारगेट, विद जीरो डिफेक्ट. जीरो डिफेक्ट नहीं होता है, ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा ही. तो मेन देखो दो चीजों पे हमारा फोकस होता है, हमेशा हम दो चीजों पे फोकस करते हैं. फर्स्ट इज रिसोर्सेस, हमारा रिसोर्सेस क्या है, क्या हम खर्च कर रहे हैं, कॉस्ट, ठीक है. एंड सेकेंड इज अवर बेनिफिट्स, या मैं इसको बोल सकती हूँ रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं. बेनिफिट्स, या मैं उसको बोलती हूँ रेवेन्यू दैट आई एम जनरेटिंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट. तो हमारा कोशिश क्या होना चाहिए, दो ही चीज हमारी कोशिश रहती है, रेवेन्यू या कॉस्ट को मिनिमाइज करना. ये तो पढ़ा है ना कॉस्ट का भी, तुमने तो पढ़ा है इसको फर्स्ट सेम में, कि हमारा बेसिक फंडा क्या है, एंटायर जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, मिनिमम कॉस्ट है. यस, तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, ये दो ही फंडा है. तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, ये दो चीज तो हम समझ में आए. बट इन बिटवीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम नहीं भूल सकते, दैट इज क्वालिटी. ना क्वालिटी क्या चीज की, आप बोलोगे क्वालिटी ऑफ व्हाट, मैं बोलूंगी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग. हम या तो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट ऑफर कर रही है या एक सर्विसेज ऑफर कर रही है टू इट्स अल्टीमेट कंज्यूमर. मैं क्या ऑफर कर रही हूँ आप लोगों को, एक सर्विस है. तो मेरी सर्विसेज में क्या मुझे होनी चाहिए, जीरो डिफेक्ट, नो कंप्लेन, मिनिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट. जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गई, या आप देखो मटेरियल मैनेजमेंट हो गई, क्लास मैनेजमेंट हो गई. मुझे क्या करना है, मुझे कम से कम टाइम में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सिखाना है. तो दिस इज माय सर्विसेज. तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा नो एरर्स हो, नो कंप्लेंट्स हो, एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेजेस. तो वो कैसे हो सकता है, दैट इज इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द क्लासेस, एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द क्लासेस. दो टर्म है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इफेक्टिव मतलब क्या होता है, मैं इसको एक बार, आई नो यू मस्ट बी नोइंग दिस बट स्टिल आई एम अगेन रिपीटिंग. इफेक्टिव का मतलब डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम को करना. दिस इज इफेक्टिव, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मतलब जो टॉपिक पढ़ाना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ा रही हूँ. तो आई एम इफेक्टिव इन दैट वे. जैसे आपको पता है कि आपके टारगेट्स को मीट करने के लिए जो जो काम करना है वो आप कर रहे हो, तो यू आर इफेक्टिव इन योर पार्ट. बट एफिशिएंट कब होगा, व्हेन यू आर मिनिमाइजिंग द रिसोर्सेज एंड thereby achieving your effectiveness. What does it mean? अपने काम को इफेक्टिव भी कर रही हूँ मैं, इफेक्टिवली भी कर रही हूँ, और कम से कम खर्च में रिसोर्सेस को बचाना है. रिसोर्स की यूटिलाइजेशन जो है वो कम से कम होगी, ठीक है. इसका मतलब जो क्लास में 4 घंटे में ले सकती हूँ, वो क्लास अगर झूमा ले रही है तो सी माइट हैव टेकन इट इन 2 hours, तो उसने 2 घंटे में सिखा दिया. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ. टाइम इज ऑल्सो रिसोर्सेज, तो मैं यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हो गई. तो एफिशिएंटली कम रिसोर्सेज देके ज्यादा जनरेट करना. तो वॉट एवर आप देखो, अल्टीमेटली द प्रोसेस इज अस हैप्पी कंज्यूमर. हमारा जो एंटायर प्रोसेस है, द प्रोसेस एम्स टू मेक अ कंज्यूमर हैप्पी. बट सिर्फ कंज्यूमर हैप्पी होने से नहीं हो सकता, प्रोड्यूसर को भी हैप्पी होना चाहिए. इट हैज टू बी इन अ बैलेंस्ड मैनर. देखो कोई भी चीज का बैलेंसिंग एक्ट होना बहुत जरूरी है. बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू मेक बोथ द सेक्शन हैप्पी. कंज्यूमर बहुत खुश है, मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी दे दी, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे कुछ बचा ही नहीं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है. तो क्या ऐसे काम को करने का कोई फायदा होगा? डेफिनेटली नहीं. तो आप जब मैनेजमेंट में हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो या एक बिजनेसमैन हो, व्हाट विल यू कंसिडर? You definitely, since we all know that this is customers era, customers are king, we all know about it. So ये आज का नहीं, बहुत पुराना हो गया customer era. So consumers are king always.
तो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, उसको इवन स्पेक्ट्रम एनालिसिस करके उससे नीड से ज्यादा उसको प्रोवाइड करना, जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा मैं अगर आपको दे रही हूँ तो वैल्यू एडिशन हो रही है काफी ज्यादा, राइट? तो कंज्यूमर को हैप्पी करना इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल जनरेट अ गुड ब्रांड एंड इट विल जनरेट प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग रन. But the next important thing is I have to consider my point of view, that is my profitability, my sustainability in the long run. प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अपने भी तो देखना है ना भाई, क्वालिटी दे रही हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, ग्रोथ देखनी है, देन लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस, सब कुछ को देखते हुए चलना है मुझे, राइट? मुझे ये सारी चीजों को देखते हुए चलना है एज अ प्रोड्यूसर. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब इसके लिए हम करेंगे क्या? जब मुझे अपने प्रोड्यूसर को भी देखना है, कंज्यूमर को भी देखना है, दैट इज अ बैलेंसिंग एक्ट, एंड देयर बाय मैनेजिंग द एंटायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, services, whatever we are offering. Now, in the entire process of managing or thinking about all the stakeholders, जैसे मैंने सभी को लेके चलना है ना, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं. स्टेक होल्डर्स किसको बोलते हैं हम? दोज हु आर एसोसिएटेड और दोज हु हैव अ स्टेक, इंटरेस्ट है, जिनको मेरे चीजों से, मेरे डिसीजन से इंटरेस्ट है, मेरी कंपनी से इंटरेस्ट है, वो हो गए हमारे स्टेक होल्डर्स. जैसे मेरा पीएसबी से, पीएसबी में अगर कोई डिसीजन लेती हूँ मैं, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? सबसे पहले मेरे ऊपर, सेकंड आपके ऊपर, उसके बाद बाकी किसी के ऊपर होगा ना. तो आप लोग क्या हो? स्टेक होल्डर्स. तो जब मैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और जितने भी स्टेक होल्डर्स उनके बारे में सोच रही हूँ, क्वालिटी मेंटेन करने के बारे में सोच रही हूँ या क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में सोच रही हूँ, पहली चीज हो जाती है जब प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्वालिटी मुझे प्रोवाइड करनी है, दैट मीन्स आई हैव टू रीच टू अ टारगेट, दैट इज माई स्टैंडर्ड सेट, और स्टैंडर्ड से ज्यादा मीन्स आई हैव टू गो बियॉन्ड दी स्टैंडर्ड. मैं अबव स्टैंडर्ड बोल रही हूँ, बिलो स्टैंडर्ड हम नहीं ऑपरेट कर सकते हैं आज के दिन, आज की कॉम्पिटिटिव एज में, व्हेन द मीन्स दिस वी आर ऑपरेटिंग इन अ ग्लोबल विलेज एंड एवरीथिंग इन एट द हाईएस्ट, एट द पीक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. तो वी हैव टू ऑलवेज ऑपरेट अबव स्टैंडर्ड. मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट जो रेट है मीन्स वी हैव टू गो अलोंग विद द मार्केट रेट. मार्केट में जो फेयर रेट है, फेयर वैल्यू पे ही ऑपरेट करना है, बट स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड या अबव स्टैंडर्ड देना, बिलो स्टैंडर्ड हम सोच नहीं सकते, ठीक है ना. तो इस तरह के, तो ये हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में अभी तक जो मैंने बताया, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ कंज्यूमर, वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी. क्वालिटी इन व्हाट? क्वालिटी इन प्रोडक्ट और सर्विसेज. नाउ व्हाट क्वालिटी वी विल प्रोवाइड as per the expectation of the consumer? Now as per the expectation of the consumer and as per the competitive जो market है, the standard जो हम provide कर रहे हैं, ये standard जो benchmark एक standard होता है ना, industry standard ये है, तो उसके लेवल पे मुझे देना है या above standard देना है? दो चीज आपको देखो, दो चीजों पे फोकस करना है. एक हो गई standard और above standard. मैं अगर एक प्रोड्यूसर होंगी तो मैं ये सोचूंगी कि मैं जो प्रोडक्ट ऑफर करूंगी, this has to be standard and above standard. And it has to go as per market rate. मार्केट से ऊपर रेट में हम कोई चीज बेच नहीं सकते. If I'm operating anywhere in the supernormal, मैं या abnormal profit bear कर रही हूँ, abnormal rate में मैं कोई चीज बेच रही हूँ, that will not sustain for long run. ये हम अपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, मार्केट में, that supernormal profit, सुपरनॉर्मल जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है ना, it will only exist in the short run. ये कम टाइम के लिए हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन फर्म, एवरी फर्म, जो भी कंपनीज हैं, दे हैव टू ऑपरेट इन नॉर्मल प्रॉफिट ओनली. फर्म विल ऑपरेट इन नॉर्मल प्रॉफिट. तो एबनॉर्मल प्रॉफिट तो ज्यादा दिन बियर ही नहीं कर सकते, मैंने हम कमा ही नहीं सकते, ऐसी बात है, इनकम नहीं होगी. तो दो चीजों पे ध्यान देना है जब हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं. तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड, एंड सेकंड इज मार्केट रेट. मतलब मैं यहाँ पर देखो दो चीजों पे फोकस करने आप लोग को बोल रही हूँ, कॉस्ट फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, दोनों को संग संग लेके चलना है, क्योंकि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए मैंने कॉस्टिंग बहुत हाई कर दी एंड देन आई कैन नॉट हैव एनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माय फर्म. मेरी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो मुझे वो कंपनी को चला के फिर फायदा नहीं होगा. आई विल डेफिनेटली इनका लॉसेस एंड देन आई विल गो इनटू शट डाउन मोड. तो वैसा नहीं जाना हमें, ठीक है. अब ये पूरा जो फंडा है, ये देना है, वो देना है, ये करना है, अल्टीमेटली इसके लिए हम करेंगे क्या? एंटायर थिंग
वर्क्स ऑन प्रोसेस। सारी चीजों का मेन जो आप अगर मैं बोलती हूँ बेसलाइन जो है, दिस इज आवर प्रोसेस। सारा काम, सारी क्वालिटी का जो भी फैक्टर है, इट ऑल वर्क्स इन अ प्रोसेस। तो हम अगर अपने प्रोसेस को सुधार लेते हैं तो सारा चीज काम, मतलब आप क्वालिटी के जितने भी ट्रेनिंग लेते हो, आइदर वो 6 सिग्मा हो, डीमैक टेक्नोलॉजीज हो, डीमैक मेथोडोलॉजी हो, कुछ भी आप पढ़ते हो, तो उसका बेसिक फंडा इज अवर प्रोसेस। तो इट ऑल स्टार्ट विद द प्रोसेस। एंड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोसेस इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मीन्स एक सीक्वेंशियल स्टेप, हमें कैसे चीजों को बढ़ाना है। या मैं अगर एक बिजनेस प्रोसेस की बात कर रही हूँ, व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस? And business process means simply a group of tasks which results in a specific service or products for customer. सीधी सी बात है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बिजनेस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ टास्क। एक ग्रुप ऑफ टास्क है जो अल्टीमेटली विल रिजल्ट इन अ स्पेसिफिक सर्विस और प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली एक ग्रुप ऑफ टास्क है ना, जैसे एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं नॉर्मली। अगर आप एक फ्लो चार्ट को ले लो, बिजनेस प्रोसेस कैसा दिखेगा आपका? एक फ्लो चार्ट जैसा ना, कि प्रोसेस ए के बाद प्रोसेस बी होगा, फ्लो चार्ट जैसा। या हम इसको बोल सकते हैं प्रोसेस मैट्रिक्स। हम लोग प्रोसेस नेटवर्क डायग्राम वगैरह देखेंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, तो वो क्या है? वो एक्चुअली इट इज नथिंग बट योर बिजनेस प्रोसेस। जैसे आप लोग का बिजनेस प्रोसेस या प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम देखोगे, वो ऐसे बनता है कि जैसे वी स्टार्ट विद दिस, हमने एक प्रोसेस हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एक काम स्टार्ट हो रहा है, देन सेकेंड स्टेप इज लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक गया, सेकेंड स्टेप वर्क्स इन दिस मैनर, देन वी हैव साइमल्टेनियसली टू प्रोसेस विल स्टार्ट, दो काम हमारा स्टार्ट हो रहा है संग संग। वन मे बी इज लाइक दिस, अनदर मे बी इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैं सीधा सा फंडा में बोल सकती हूँ, वी स्टार्ट विद नंबर 1, एक्टिविटी 1 से हमने स्टार्ट की, और यहाँ जो ये बीच का लाइन आप देख रहे हो, इसमें सपोज 15 मिनट लगा, 15 मिनट इज द टाइम, देन वी रीच टू सेकेंड स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज होने के बाद यहाँ पर हम पहुँचे। अब देखो ये जो टाइम है 2 से हम 3 में जब जा रहे हैं, तो वहाँ पे मे बी 45 मिनट्स इट विल टेक। वो डेज भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो मैंने यहाँ पे मिनट बताया आप लोग को। देन आई रीच टू थर्ड स्टेज। थर्ड और फोर्थ जो है वो एक संग स्टार्ट हो रहा है, मीन्स आफ्टर 1 के बाद 2 हो रहा है, और 2 के बाद 3 और 4 एक संग स्टार्ट हो रहा है। 2 से 3 में जाने में 45 मिनट, 2 से 4 में जाने में 15 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो एक प्रोसेस है, मीन्स अल्टीमेटली मैं इसको चलो यहाँ पे पहुंचा देती हूँ। चलो यहाँ पे पहुंच जाते हैं हम लोग। मैं छोटा सा डायग्राम में फाइनल कर रही हूँ उसको, बिकॉज दिस इज जस्ट टू शो यू कि हमारा प्रोसेस फ्लो चार्ट कैसा होता है। तो अल्टीमेटली आई रीच टू, दिस इज माई स्टार्ट, ये मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दिस इज एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है? जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम दिखा के आप लोगों को समझाया, तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बिजनेस प्रोसेस को समझा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर फंक्शन अपने अपने तरीके से ऑपरेट करता है, तो उस फंक्शन का प्रोसेस कैसा है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है। देखो स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं विद द रिसोर्सेज, इसके बाद हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, एंड देन इट विल रीच टू द फाइनल एंड, और फिर वो वहाँ से आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए चले जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, देन इट विल गो टू होलसेलर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर, वो ऐसे करके कंज्यूमर तक जाएगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। तो मैंने यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट बनाया, ये बिजनेस प्रोसेस सिर्फ अपना इंटरनल बनाया, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो हमारा मेन फंडा क्या है कि हमारा प्रोसेस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो बिजनेस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझना है। बिजनेस प्रोसेस क्या है? क्लियर है ना? अब देखो बिजनेस प्रोसेस का, कोई भी बिजनेस प्रोसेस होगा उसके 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है उसका इनपुट,
जो स्टार्ट में आप समझ रहे हो, स्टार्ट के पहले से ही आप स्टार्ट हो जाएगा, समझ लो यहाँ से आपका इनपुट आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से इनपुट, देन योर प्रोसेसिंग, लेट्स से यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, एंड देन आउटपुट आप जो भी जनरेट कर रहे हो। तो ये 3 एलिमेंट होता है किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारा अगर मतलब कोई भी बिजनेस का फंक्शन में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मुझे ये तीनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है। एवरी टाइम whenever think about quality, think about business process, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो हमें अपने ये 3 एलिमेंट को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा ये 3 एलिमेंट जो है whether that is in order or not। क्योंकि बिजनेस प्रोसेस क्या हो गया, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, सब चीजों को मिलाकर, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल दिस। ये सारा प्रोसेस, ये पूरी एक्टिविटीज को लेकर हमारा काम हो रहा है ना। अल्टीमेटली वी आर रीचिंग अवर ऑब्जेक्टिव ओनली वंस दिस प्रोसेस इज इन प्रॉपर ऑर्डर, राइट। अब ये जो बिजनेस का प्रोसेस है ना, बिजनेस के प्रोसेस में नॉर्मली हम लोग 3 चीज पे फोकस करते हैं। कितना तरह का बिजनेस प्रोसेस होता है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स इट। हमारा जो बिजनेस का जो प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, क्योंकि देखो इट ऑल स्टार्ट्स विद द प्रोसेस। मैंने पहले ही बोला अगर हमारा प्रोसेस ठीक रहेगा, हमारे काम को करने का तरीका सही रहेगा तो सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली काम होगी। जैसे एचआर डिपार्टमेंट को इस तरीके से काम करना है, इसको हम लोग एसओपी, साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी हमने प्रोसेस पे, मतलब एकदम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी वहाँ, उसके बाद जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था तो उस टाइम क्या था, प्रोसेस फोकस। पहले काम का कोई करने का सही तरीका नहीं था तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आया और फिर वो सिखाया गया। देन वहाँ पे ह्यूमन डायमेंशन, मैनेजमेंट में फिर धीरे धीरे ह्यूमन डायमेंशन ऐड हुआ और अभी हम लोग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट इज एक्चुअली द प्रोसेस, नथिंग एल्स। हमें अगर अपने प्रोसेस मैनेजमेंट करना है और मतलब पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट करना है तो प्रोसेस मैनेजमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये 2 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो पहले आपके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। कितना तरह का प्रोसेस होता है। एक हो गया आपका मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब क्या हो गया, जो एकदम टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट करने के लिए होता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारा एथिक्स वगैरह, ये सब मैनेजमेंट के प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑपरेशनल प्रोसेसेस। ये तो आप लोग समझ ही गए, ऑपरेशनल प्रोसेसेस इतना पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज दिस इज द कोर। ये प्रोसेस तो कोर है ना, किसी भी बिजनेस का कोर प्रोसेस ही ऑपरेशनल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, मार्केटिंग, ये सब आ जाता है आपका ऑपरेशनल प्रोसेसेस में, ठीक है। देन यू हैव सपोर्ट प्रोसेसेस। सपोर्ट प्रोसेसेस में आपका क्या आता है, बाकी जितने भी सपोर्ट एक्टिविटीज हैं, लाइक बिजनेस में तो और भी सपोर्ट एक्टिविटीज लगता है ना, लीगल सर्विसेज हैं, या आप ले लो एडवाइजरी कुछ सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, टेक्निकल सपोर्ट है, इतने सारी चीजें हमें लगते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या बताया, बिजनेस प्रोसेस के बारे में हमने देखा कि बिजनेस प्रोसेस क्या है। बिजनेस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, बिजनेस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ हुआ। एक बार जरा सपोर्ट प्रोसेस क्या होता है? सपोर्ट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है सपोर्ट। एक बिजनेस को करने के लिए, चलाने के लिए आपको बहुत सारे एडिशनल मैंने जो नॉन कोर फंक्शंस हैं, ऐसा आप ले लो एचआर का ही सपोर्ट जो हो गया, वो बहुत ज़्यादा लीगल में भी चला जाता है, कंप्लायंस सपोर्ट होता है, या आपका फाइनेंशियल कुछ फंक्शंस है, फाइनेंशियल बैंक के सपोर्ट चाहिए, मुझे बैंक लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं ओवरड्राफ्ट चाहिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, क्या बोलते हैं क्रेडिट पे कुछ सामान चाहिए, तो उसमें कुछ सपोर्ट प्रोसेसेस भी काम करता है। तो मैनेजमेंट का प्रोसेस तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एथिक्स, गवर्नेंस तो है ही, ऑपरेशनल तो कोर ही आपके काम को करने में। इसके अलावा जो साइड, जैसे कंप्यूटर्स ठीक से चले
उसके लिए हम क्या करेंगे, आईटी वालों का टेक्निकल सपोर्ट रखेंगे। फैसिलिटीज सारे प्रॉपरली काम करें, उसके लिए क्या एक फैसिलिटी मैनेजर हम अपॉइंट करते हैं। क्या सारी चीजें देखो, एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर, इट इज नॉट ओनली अबाउट मैन मशीन मटेरियल एंड मनी, अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर। अगर एक ऑफिस में जाते हो आप और वहाँ पे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, आपके टेबल में कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो क्या आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो यू नीड टेक्निकल सपोर्ट फॉर दैट। तो एवरीथिंग सपोर्ट सर्विसेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो एवरीथिंग मस्ट बी इन अ प्रोसेस, ठीक है। बाकी सबों का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? प्लीज अनम्यूट एंड से क्लियर, ओके वेरी गुड। चलो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में बात की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट का बेस ही है कि अनटिल अनलेस इफ वी आर क्लियर अबाउट द प्रोसेस, एक ऑर्गेनाइजेशन का, देखो इट माइट बी पॉसिबल दैट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो एंड दैट टाइम यू माइट हैव टू थिंक कि भाई यहाँ पे एरर हो रहा है या यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो रही है, द फंक्शन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, या वहाँ के जो मतलब क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। तो जो बेस, जो रूट कॉज है, वो है उसका प्रोसेस। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, मे बी फिजिकली यू हैव टू गो एंड वेरीफाई, इट कुड बी एन एचआर डिपार्टमेंट प्रोसेस, इट कुड बी अ फाइनेंशियल प्रोसेस, फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे ऑपरेट कर रहा है, या आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में देख लो, कोई भी कितने सारे डिपार्टमेंट होता है, आउटडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट है, सीसीयू है, डर्मेटोलॉजी, बहुत वैरायटी ऑफ चीजें होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, और हर प्रोसेस जो है वो एकदम एफिशिएंटली मैनेज हो रही है या एफिशिएंटली हैंडल हो रही है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि ये तो हमें पता है कि हर एक प्रोसेस को मेजर करने का एक तरीका होता है, हर एक प्रोसेस का। जैसे अगर आप देख रहे हो कि सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं क्यू कितनी लंबी है। जैसे अगर आप जाते हो और देखते हो कि आप एक जगह पर काम, आप एक अपॉइंटमेंट लेके गए हो डॉक्टर से मिलने, और क्यू जो है बहुत लंबी है, वो मैनेज ही नहीं हो रहा अच्छे से, बहुत लंबी, आप वेट करे जा रहे हो, इसका मतलब वहाँ जो क्यूइंग लाइन थ्योरी है उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मैनेज हो रहा है, इतनी ज़्यादा वेटिंग टाइम क्यों है। तो सर्विसेज में वेटिंग टाइम को कम करना होता है, नॉर्मली सर्विसेज में वेटिंग टाइम ही देखते हैं हम। प्रोडक्ट में फिर हम देखते हैं क्वालिटी एज पर या स्टैंडर्ड जो है, जो एज पर टारगेट्स या बेंचमार्क है या नहीं है। तो ये प्रोसेस पे तो आपको मे बी यू माइट हैव टू गो एंड एंटर इनटू फिजिकल मतलब वेरिफिकेशन कि प्रोसेस कैसे कैसे चल रहा है। आप अगर देखते हो किचन को मैनेज करना है, किचन की एफिशिएंसी कम हो रही है, आप कोई होटल रेस्टोरेंट में आप मैनेजर बने हो, तो वहां जाकर आपको किचन में फिजिकली वेरीफाई करना होगा कि क्या क्या प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं, सब्जी धो रहे हैं, सब्जी सुखा रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक प्रोसेस को आपको फिजिकली देखना पड़ेगा। सपोर्ट प्रोसेस, ऑपरेशनल प्रोसेस, तो हर एक प्रोसेस को एफिशिएंसी हर एक प्रोसेस पे देखनी होगी ना, तो इसके लिए आपको फिजिकली भी काम करना होगा एंड डेफिनेटली जो बाकी तो पेपर में तो है ही, ठीक है, थियोरेटिकल तो है बट फिजिकली बहुत काम होता है क्वालिटी में। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब समझ ही रहे हो कि कंटिन्यू इंप्रूव होना चाहिए, जो भी प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होना चाहिए, मतलब उसमें इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, जहां पर भी जरूरत है। कहीं पर अगर हमें कुछ फॉल्ट लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उस फॉल्ट को देखना है। एंड नॉट ओनली मैं कॉन्स्टेंटली फॉल्ट को ही देखती रहूं, मुझे कॉन्स्टेंटली या प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव कैसे, जैसे आपको एक तो देखना है मतलब या प्रिवेंट करना है, ठीक है, जो आपके फंक्शनिंग को, मतलब हमारा मेन फंक्शन क्या है पूरा क्वालिटी में, या मैंने इकोनॉमिक्स में भी बताया है कि एवरी फंक्शन मस्ट परफॉर्म ऑप्टिमली, मतलब ऑप्टिमली, मैं इसको ऑप्टिमली लिख देती हूँ, ऑप्टिमली परफॉर्मेंस होनी चाहिए for all the functions in whichever we are operating. So all the functions should be optimally performed. तो यहाँ पर हमें देखना है कोई अगर डिफेक्ट्स है या अगर कोई कॉजेज हैं which is actually hampering any functions to perform at the optimal level.
इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले प्रोएक्टिवली आपको चेक करना है, मतलब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है ना, हमारा मैनेजमेंट का कितना फंक्शन होता है, मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में आप लोग को बताया मैंने, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर आपको ये जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग, ये तो एकदम साइक्लिकल वे में चल रहा है। देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है ये एकदम पूरा साइक्लिकल वे में चलेगा। कैसे? देखो हमने प्लान किया, जैसे हमने प्लानिंग की, हम अब प्लान कर रहे हैं, काम चल रहा है, हमने कंट्रोलिंग की, सब कुछ ठीक है, वेरी गुड, वील वर्क एज पर प्लान, अपने जैसे प्लान है वैसे फिर से काम करना है, अकॉर्डिंग टू प्लान विल कंटिन्यू, देन अगेन वी विल कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। बट अगर प्लान में कोई डिविएशन है, मतलब हम देख रहे हैं कि इफ इट इज गोइंग एज पर प्लान, प्लानिंग के हिसाब से अगर चल रहा है, मतलब प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है, कंट्रोलिंग क्या, एवरीथिंग इज फाइन, हमारा क्या दिख रहा है कि एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर सब कुछ फाइन है तो देन वील वर्क एज पर प्लानिंग, विल फंक्शन वेल। अगर सब कुछ सही नहीं है तो कंट्रोलिंग में ही पकड़ा जाएगा कि कहाँ कुछ डिफेक्ट है, कहाँ कुछ डिविएशन है। अगर डिविएशन है, मुझे जैसे डिविएशन कैसे पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुझे प्लानिंग किया था, मुझे यहाँ जाना है, मेरा प्लानिंग था मुझे इस जगह पर रीच करना है, आई रीच हेयर, कंट्रोलिंग मैंने देखा हम यहाँ पर पहुँच गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कंट्रोल किया, देखा मुझे यहाँ पहुँचने की जगह मैं इधर पहुँच गई, कंट्रोलिंग में यहाँ पता चला, प्लानिंग था इधर जाने का, हम पहुँच गए इस तरफ। तो क्या होगा, अल्टीमेटली वी हैव टू प्लान अगेन एंड देन विल रीच टू दिस स्टेज, मुझे फिर से प्लान करना पड़ेगा, फिर से हमको उधर पहुंचना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग का ना साइक्लिकल रिलेशनशिप है जो घूमता ही रहता है, एक दूसरे के संग बिल्कुल घूमता रहता है। समझा पाई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Once again. Planning and ठीक है, मैं बता दे रही हूँ बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट देखो, आई प्लान, नॉर्मली मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप ही है प्लानिंग। प्लान किया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है, वी वुड लाइक टू अचीव अ गोल लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोलिंग किया, चेक किया कि वेदर आई रीच टू दिस स्टैंडर्ड, मेरा जो प्रोडक्ट बना है वेदर दिस इज एज पर दिस स्टैंडर्ड और नॉट। नाउ वी रीच टू दिस स्टैंडर्ड एंड दिस इज फाइन, ऐसा ही बना है प्रोडक्ट, ऐसा ही बना है, दिस इज अवर टारगेट एंड वी मेट अवर टारगेट, वेरी गुड, देन वील फॉलो द प्लानिंग। जो प्लानिंग किया फिर से वैसे ही एक साइकिल जैसा कंटिन्यू करना है। अब यहाँ फिर से प्लानिंग हुई हमारी, फिर से काम करना है, पर इस स्टेज में देखा कि हमारा टारगेट था ये, प्लानिंग किया, टारगेट इज दिस, बट जब यहाँ पर हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जब मैंने यहाँ पे कंट्रोलिंग किया तो मैंने इधर क्या देखा कि अवर प्रोडक्ट इज लाइक दिस, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंस, ये होना चाहिए था और ये हुआ, इज इट सेम? इट इज नॉट सेम, इज नॉट इक्वल ना, ये होना चाहिए था, प्लानिंग ये थी, हुआ ये। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू प्लान अ फ्रेश, तो फिर से नई प्लानिंग होगी, न्यू प्लानिंग। अगर हमने प्लान किया था ऐसा, मेरा पहला प्लानिंग कैसा था, ऐसा, और ऐसा ही यहाँ पर मुझे मिल गया, दिस इज फाइन। अगर मैं जो प्लान कर रही हूँ मैंने कंट्रोल किया कि ऐसा चाहिए था, ऐसा ही है, टारगेट मेट, गुड, फिर वील कंटिन्यू विद दैट प्लानिंग। बट अभी जब प्लानिंग में मेरा ये है और कंट्रोलिंग किया तो ये निकला मेरा प्रोडक्ट विच इज नॉट इक्वल, देन वी हैव टू प्लान अ फ्रेश। तो ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो ना वो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्लियर? सबको क्लियर? मोपाली, श्रेया, आप लोग के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है, क्या बात है? आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो? क्लियर है, चलो वेरी गुड। अभी क्लियर है ना, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सो क्लियर होने के बाद मुझे अच्छे से बताना कि कितना क्लियर है। चलो अब मैं यहाँ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आ रही हूँ। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में सबसे पहली चीज हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम अच्छे से मॉनिटर करें। ऐसा नहीं कि मेरी एक प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद हम मॉनिटर करें कि ये मैंने कंट्रोल, सपोज ये कंट्रोलिंग मिस हो गया,
एक स्टेप, अब छोटा सा स्टेप सोचो, अगर ये कंट्रोलिंग स्टेप मिस हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा कितना डेविएशन हो गया प्रोडक्ट के, ये चाहिए था और ये मिला, एंड इट रीच टू माय कंज्यूमर। सोचो तो क्या सिचुएशन हो सकती है, कस्टमर कैसा हो जाएगा, एकदम गुस्सा सा होगा। तो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए हमारा एक प्रोएक्टिव एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, दैट एवरी टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर वी आर वर्किंग एज पर प्लानिंग और नॉट। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एकदम साइक्लिकल वे में चलनी चाहिए, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें कि अपने जो है जो भी कॉजेज हैं, कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा प्रोसेस जो है that is operating in a suboptimal level, किसी भी हालत में हमारा प्रोसेस सब ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होना चाहिए, इट हैज टू वर्क एट द हाईएस्ट ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमल या ऑप्टिमम से भी ज़्यादा हो, तो ऑप्टिमम से ज़्यादा नहीं हो पाता, ऑप्टिमम लेवल इज मैक्सिमम लेवल हो जाता है। तो ये है, ठीक है। नॉर्मली ये तो समझो कि क्वालिटी के एक तो चीज़ जान लो आप लोग, हिस्ट्री है ये, क्वालिटी का जितना भी टेक्निक्स है वो सारा जापान में ही आया है, जितना भी सब कुछ क्या है ना, पहले यूएस वाले जापान को ध्वंस करते हैं, उसके बाद यूएस वाले अपने साइंटिस्ट को भेजते, जाओ जापान पे जाके रिसर्च करो। तो जितने भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स या क्वालिटी की हिस्ट्री आप देखोगे, वो काइजन हो या आप जितने भी आप टूल्स वगैरह देखो, सिक्स सिग्मा ही ले लो, सब चीज़ वहीं जाकर डीमैक हो, सब कुछ जापान से ही आता है, ओरिजिनेशन वहीं पे, उसको ओरिजिनेट जो है वो वहीं होंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है, अल्टीमेटली कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि मेन है कि आप कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विल लीड टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर आ जाएगा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब ये जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है ना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, ओके। नॉर्मली कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से क्या होगा, एवरी टाइम वी विल ऐड वैल्यू। वैल्यू के बारे में आप लोग को बताया है मार्केटिंग में, याद है, व्हाट इज वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू फॉर द कंज्यूमर, बोलिए, वैल्यू जनरेशन क्या है। One is social value, another one is emotional value. That is the satisfaction and benefits that the consumer is gaining from the product. Yes, very good. So value is simply, we can simply say that value is in the perception of the consumer, means what a consumer is perceiving after using the product. So we normally quantitatively we define value as difference between benefit minus cost of the product. Normally क्या, benefit जितना higher होगा, मतलब अगर कंज्यूमर को फील, वैल्यू इज एक्चुअली द परसेप्शन दैट अ कंज्यूमर रिसीव, कंज्यूमर के लिए उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू, वैल्यू जनरेशन क्या हो रही है, प्रोड्यूसर वैल्यू जनरेट करेगा, हायर द वैल्यू जनरेशन इज, means how a consumer, means producer can generate value for the consumer, it is simply by giving more and more benefit, more and more value addition in the product, then the cost, वही वैल्यू है। तो यहाँ पर वैल्यू जनरेशन, क्योंकि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग देखो ओवरऑल, आप देखो सब चीज़ों के डिफेक्ट्स कम हो रहे हैं, अगर डिफेक्ट्स हमारे कम होंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम डिफेक्ट्स को फोकस कर रहे हैं कि एरर कम से कम हमारे एरर्स हो जाएं, तो वेस्टेज भी हमारा कम हो जाएगा। वेस्टेज कम मतलब हमारे रिसोर्स जो है वो एकदम, रिसोर्सेज जो है इफेक्टिवली या में ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन हो रही है। जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम अगर मुझे दिख रही है कोई भी प्रोसेस में, तो देन एंड देयर वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। सो इट्स सिंपली मीन्स कि आपका एकदम स्मूथ फंक्शनिंग होगा आपका प्रोसेस का। अब अगर आप एक एरर फ्री प्रोसेस देखो तो कितना स्मूथली काम होगा ना। अगर आप पूरा एक प्रोसेस को देखो, यू जस्ट विजुअलाइज एनी प्रोजेक्ट, एनी व्हाट टू से, एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को आप ले लो जो एकदम एरर फ्री चल रहा है, तो कितना आसानी से एकदम स्मूथली चल रहा है। तो हर तरह से टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, एंड डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन विल बी एट वेरी हाई, राइट।
ये हम लोग करते कैसे कि जितना क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है ना, उसके लिए हम लोग पूरा एक क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो एंटायर प्रोसेस जो मैंने बताया, ये एक्चुअली क्वालिटी मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है। जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट two basic things are understanding the business process, second is continuous improvement. We will definitely use different models. We will have, means there are different models or tools which have been developed, like models हो या or different types of tools that have been developed, like control charts हैं आपके, then sampling है, बहुत सारी चीजें हैं that will help you to understand all this thing कि किस तरीके से हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे या कंटिन्यूस पे इस पे काम करेंगे, ठीक है। देयर आर वेरियस मॉडल्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं बहुत सारे मॉडल्स की बात नहीं कर रही हूँ आज, एक संग मॉडल्स पे हम नहीं जाएंगे। नाउ आई विल मूव टू बिजनेस सिस्टम। अच्छा, अभी पहले